Jai Hind student, we are on the revision mode, and in this I have done so many numerical problems. I hope you have also done with the same pace as we are doing in the revision module. These are the some numericals which I have discussed in your class. These are from H.C. Verma, and I'm not going to discuss all the questions. Just go through the question number 9, 10, and 11 because these are, I think, there are some important questions which may be asked in your upcoming examination. So please go through all these numericals. Due to the lack of time, I won't be able to do the question in the classroom. So 8th तक हमने कर लिया था और 9th 10th 11th आपको एज अ होमवर्क मैंने दिया था. आई एम रिमाइंडिंग यू वंस अगेन, आप ये करिए. नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ दिस, आई हैव टू डिस्कस दिस बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहीं कहीं डाउट रह जाते हैं. सो यू हैव टू पिक द करेक्ट ऑप्शन among the following. Okay, a mirror forms a virtual image of a real object. ठीक है, it must be a convex mirror, concave mirror, plane mirror, it may be any of the mirror mentioned above. अब ये चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद what I come to know that a mirror forms a virtual image. It is not telling me that which type of image, lateral, inverted, erected. तो वर्चुअल की बात कर रहा है, तो वर्चुअल तो हमारे पास सारे केसेस में होते हैं. इफ यू गो विद द ऑप्शन नंबर ए और बी और सी, दैट विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन. द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज इट मे बी एनी ऑफ द मिरर मेंशन्ड अबव. तो तीनों ही केसेस में हमारे पास बन सकती है, और इन तीनों केसेस में जो हमारे पास सबसे बेटर ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन नंबर डी. ये नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. The angle of incidence is the angle between the incident ray and the surface of the mirror, the reflected ray and surface of the mirror, the normal to the surface and the incident ray, the normal to the surface and refracted ray. It is asking about the angle of incidence, that is I, which means that it will be a angle between normal to the surface and the incident ray. This will be the correct option. So most appropriate answer, either you will get the most appropriate answer or you will get the exact answer. So in a given question, go through the all options first, then decide what could be the possible answer. And if you are not able to reach the final answer, suppose there might be some confusion in between, so eliminate the options. Elimination means that this cannot happen, this cannot happen. So we are left with the option number B and C. अब आप वापस से क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और बी और सी ऑप्शंस को फिर से देखिए. वहां पर जो आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपको करेक्ट लग रहा है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. कभी कभी होता है क्वेश्चंस में आपको सीधे आंसर्स नहीं दिए होंगे, सो ये टेक्निक याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. The angle of reflection is the angle between. Now this is the angle of reflection. ये ऊपर वाले क्वेश्चन का सब पार्ट है, the normal to the surface and the reflected ray. ठीक है, आसान है. Okay, next question, question number 4. An object is placed at the center of curvature of a concave mirror. Okay, the distance between its image and pole is equal to the. अब ऐसे क्वेश्चंस में आप डायग्राम बना लीजिए. कॉन्केव मिरर तो हमने ये ड्रॉ कर दिया. ओके, एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी, हमने ड्रॉ कर दी. इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नाउ इफ दिस इज कॉन्केव मिरर, दिस विल बी फोकस एंड दिस विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हिच इज 2f. ओके, नाउ यू हैव टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट. आपने क्या किया, जस्ट सिंपल आपने खड़ा कर लिया. इफ यू आर एबल टू रिकॉल इट इन योर माइंड, इट्स बेटर टू गो विद द डायरेक्ट आंसर. और इफ यू आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चन, you have some sort of confusion, it's better कि आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए. नाउ यू क्लियरली सी दैट द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड पोल. सो इसकी इमेज किधर बनती है बच्चों,
इसकी इमेज तो आपको लैटरल मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है, सेम साइज की मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है ना, ये ऐसा ही तो केस था। इसका मैग्निफिकेशन भी सेम होता है, HI/HO, ये भी सेम होता है। क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाइट सेम होगा, लेंथ सेम होगी, जो भी आप कह सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। तो इमेज यहीं पे बनेगी, सो द डिस्टेंस विल बी 2f। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए। नाउ इस तरह के क्वेश्चंस की मैंने आपको एक शीट दी हुई है, ये जो हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस किया इससे पहले वाली क्लास में। तो ये शीट्स है। इफ f इज इक्वल टू r/2 इज वैलिड, अब ये वैलिड कहाँ पर है ये हमें पता लगाना। ओके, इट इज वैलिड फॉर वेयर? फॉर कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर कॉन्केव मिरर, फॉर कॉन्केव मिरर बट नॉट फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर, नीदर फॉर द कॉन्वेक्स। तो ये चीजें आप एनसीईआरटी पढ़ करके जान सकते हैं कि f इज इक्वल टू r/2 will be for both convex and concave. So this time is for the brush up of the concepts, revise through the numericals। numericals मैंने कई सारे करवाए आपको। आप जो बचे हुए हैं 3 numericals 8, 9, 9, 10, 11, आप उन पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप मुझसे फिर से बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन फॉरवर्ड कर दूंगा समझाते हुए, या मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो ही बना दूं उसके ऊपर। ठीक है, तो ये शीट अब आपको खत्म करनी है। इस शीट के बाद आपका रिफ्लेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, आपको रिफ्लेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आई। रिफ्रैक्शन हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद दी लेंसेज। लेंस के ऊपर हम एक नया वीडियो डाल देंगे। गॉट द पॉइंट? तो थैंक यू एंड जय हिंद, एंड डू मोर प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। थैंक यू एंड जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।